ریجنل نیوز یونٹ آکاشوانی سری نگر کی پیشکش ریڈیو نیوز ریل ہفتے رفتہ کی خاص اور اہم خبروں کے خلاصے پر مبنی پروگرام ریڈیو نیوز ریل۔ سامعین آداب، نیوز ریل کا تازہ شمارہ لے کر میں شبیر الزماں۔ ہمارے آج کے شمارے میں لداخ میں جموں کشمیر ہائی کورٹ کی بینچ کے قیام کو مرکزی کابینہ کی منظوری، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا وائبرنٹ ولیج پروگرام کے تحت کٹھوا ضلع میں کرول کرشنا گاؤں کا دورہ، بھارت میں امریکہ کے سفیر سرگیو گور کا دورہ جموں کشمیر، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے ملاقات اور 9 روزہ ترنگا مہم 17 اگست کو اختتام پذیر۔ اب پیش ہے موضوعات کی تفصیل۔ مرکزی کابینہ نے لداخ میں جموں کشمیر ہائی کورٹ کی ایک بینچ قائم کرنے کی منظوری دی ہے۔ اس بات کی جانکاری مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے دی۔ وزیر موصوف نے کہا کہ اس قدم سے انصاف اور عدلیہ تک لداخ کے لوگوں کی رسائی مزید آسان بنے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سرکار لداخ کی مجموعی ترقی اور اس خطے کے لوگوں کے آئینی حقوق کو تحفظ فراہم کرنے کی وعدہ بند ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ سرحدی علاقوں میں غریبی کی سطح میں قدرے کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ ان علاقوں سے شہروں کی طرف ہجرت کی شرح میں 50% کی کمی آئی ہے۔ جموں صوبے کے کٹھوا ضلع میں کرول کرشنا نامی سرحدی گاؤں کے دورے کے دوران وہاں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ خواتین سیلف ہیلپ گروپ مقامی معیشت کو مضبوط کر رہے ہیں اور ہمارے نوجوان دلی اور ممبئی میں رہنے والے اپنے ہم پلہ نوجوانوں کی طرف بڑے خواب دیکھ رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ سرحدی دیہات ملک کے آخری نہیں بلکہ قوم کی شناخت اور ترقی کے لحاظ سے صف اول کے گاؤں ہیں۔ لمبے سمے تک ہمارے راشٹریہ جیون میں بارڈر شبد کے ساتھ ایک دوری جڑی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے سیما پر بسے گاؤں دیش کے نقشے کے انتم چھور پر ہیں۔ ایسا مانا جاتا تھا کہ سیماورتی گاؤں سرکار کی پراتھمکتاؤں سے کے حاشیے پر ہیں، لیکن اب استھتی بدل گئی۔ اب آپ حاشیے پر نہیں ہیں بلکہ اب بھارت کے دوار پر ہیں اور بھارت آپ ہی سے آرمبھ ہوتا ہے۔ آج میں یوا پیڑھی نوجوانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سپنوں کی سیما گاؤں کی بھگولک سیما نہیں، پورا پرشاسن آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس موقع پر ایل جی نے سیکورٹی جوانوں کے ساتھ بات چیت کر کے ملک کی سرحدوں کی مضبوط نگرانی کے لیے ان کا حوصلہ بڑھایا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ موجودہ جموں کشمیر سرکار عوام کے لیے بنیادی ڈھانچے کی ہر سہولت پورے معیار کے ساتھ فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ سری نگر کے آلوچی باغ میں قریب 26 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت سے تعمیر کیے گئے ایک جدید ترین ذبح خانے کا سنگ بنیاد رکھنے کے موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومت شہری اور دیہی دونوں علاقوں میں تعمیر و ترقی کے عمل کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ اسی دوران وزیر اعلیٰ نے گزشتہ دنوں شہری سری نگر کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے یہاں عملائے جا رہے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ بھارت میں امریکہ کے سفیر سرگیو گور نے گزشتہ دنوں جموں کشمیر کا دورہ کیا۔ سری نگر میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے ملاقات کرنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے سرگیو گور نے کہا کہ وہ وادی کا دورہ کرنے پر مطمئن ہیں۔ انہوں نے جموں کشمیر کو بھارت کا ایک اہم حصہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہاں بہت سے شعبوں میں کافی ترقی ہوئی ہے۔ سفیر موصوف نے کہا کہ چونکہ مرکزی سرکار اور مقامی حکومت کی کوششوں سے سلامتی کی صورتحال بہتر ہوئی ہے، لہٰذا اب امریکی ایڈوائزری میں نرمی ہونی چاہیے۔ Good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi. But a very warm, very cordial, and we look forward to building this relationship forward. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے امریکی سفیر کے ساتھ بات چیت کو کافی سود مند قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملاقات کے دوران بھارت اور امریکہ کے مابین موجودہ اور مستقبل کی شراکت داری پر توجہ مرکوز رہی۔ We had an opportunity to discuss relations between our two countries with specific focus on what the US can do with Jammu and Kashmir. There are obviously certain legacy issues that over time we will be working to resolve, but we are very hopeful and optimistic that the engagement between the United States of America and Jammu and Kashmir will both widen and deepen in the years ahead. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ گفت و شنید صرف الفاظ کا تبادلہ نہیں بلکہ دلوں کے درمیان ایک پل اور امن و خوشحالی کے لیے اعتماد کو پروان چڑھاتی ہے۔ سیو یوتھ سیو فیوچر فاؤنڈیشن کی طرف سے پلوامہ میں منعقدہ ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 6000 سال قبل ہمارے ملک نے ایک ساتھ چلنے، ایک ساتھ تحفظ کرنے اور ایک دوسرے کے لیے دلوں میں جگہ بنانے کا ایک خوبصورت پیغام دیا تھا۔ انہوں نے اسکولوں، کالجوں اور کمیونٹی مراکز میں بین المذاہب مذاکرات منعقد کرانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس ملاقات کارکرم کے ذریعے ہمیں کیسے خیال
एक ऐसी सोच के साथ यहाँ खड़े हैं जो कहता है कि आपसी गुफ्तगू केवल अल्फाज का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह दिलों के बीच ब्रिज बनाने का सबसे बड़ा माध्यम है, पुल बनाने का माध्यम है। किसी ने बहुत खूब कहा कि दीवारें छोटी होती थीं, लेकिन पर्दा होता था। तालों की इजाजत से पहले सिर्फ भरोसा होता था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भारत की बदलती हुई रोजगार की उमंगों को उजागर करते हुए कहा है कि एक खुद इन्हिसार जम्मू कश्मीर का मतलब एक ऐसा खित्ता है जहां हर नौजवान शहरी अपनी लियाकत और काबिलियत के मुताबिक किसी न किसी सूरत में रोजगार देने वाला बन सके। जरी यूनिवर्सिटी जम्मू में JKCIP के तहत एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टार्टअप आउटरीच प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि जरी सेक्टर नौजवानों की कारोबारी सरगर्मियों के लिए एक बड़ा मैदान है। मनोज सिन्हा ने ताहम कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप का कोई भी इनकलाब खवातीन की शिरकत के बगैर नामुकम्मल होगा। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर का आज का नौजवान लाइन में खड़ा रह के रोजगार ढूंढने के बजाय दूसरों के लिए मौके पैदा करने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर का युवा अब केवल नौकरी की कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार नहीं कर सकता। अब उसे दूसरों के लिए रोजगार पैदा करने के लिए आगे आना होगा और बहुत सारे युवा आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की धरती ने सदियों से ज्ञान, संस्कृति, साहस और सृजन की परंपराओं को जन्म दिया है। अब वक्त आ गया है कि नौजवान इन परंपराओं को नई ऊर्जा, नई तकनीक और नई उद्यमशीलता से जोड़ने का काम करें। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कचरे को दोबारा इस्तेमाल में लाने की अहमियत उजागर करते हुए कहा है कि लोगों को बाजार से कुछ खरीदते वक्त दुकानदारों से प्लास्टिक की नई थैलियां लेने के बजाय घर से ही बार बार इस्तेमाल होने वाली थैलियां साथ लेने की आदत अपनानी चाहिए। श्रीनगर में महकमा फ्लोरिकल्चर की तरफ से कायम करदा वेस्ट टू वंडर गार्डन का इफ्तिताह करने के मौके पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये बाग इस तखय्युल को तकवीयत बख्शता है कि किसी भी चीज को फेंकने से पहले ऐसा जरूर सोचा जाए कि इस मटीरियल को कैसे दोबारा इस्तेमाल में लाया जाए। किसी भी चीज को जो है दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है अगर कि आपकी वो सोच हो। यहाँ पे अगर आप घूम के देखें तो आपको अजीब अजीब चीजें दिखेंगी जिनका आप अंदाजा नहीं कर सकते थे कि उनको किसी बाग में इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि आजकल हम सब ने देखा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और प्लास्टिक वेस्ट के डिस्पोजल का एक बहुत बड़ा मसला हमारे शहरों में भी और देहात में बना हुआ है। लेकिन अगर कहीं रिसाइकलिंग और रीयूज की गुंजाइश है, यही इस बाग के पीछे मकसद है। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल के उसूल पर कायम करदा इस बाग के इफ्तिताह के मौके पर वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी और महकमा फ्लोरिकल्चर की डायरेक्टर मतहूरा मासूम भी मौजूद थीं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चीफ प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर और डायरेक्टर अमित शर्मा ने मुर्दमशुमारी 2027 की अहमियत को उजागर करते हुए आबादी के लिहाज से एक काबिल एतबार डेटाबेस तैयार करने की गर्ज से इस अहम सरगर्मी में अवाम की भरपूर शिरकत नीज सही और मुकम्मल जानकारी दर्ज कराने पर जोर दिया है। वो भद्रवा में मुर्दमशुमारी से मुतलिक सेंसस 2027 काउंटिंग टुडे शेपिंग टुमारो के मौजू से मुनक्किदा एक जानकारी प्रोग्राम में इजहार ख्याल कर रहे थे। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर के 16 अजला में बर्फीले इलाकों और लद्दाख यूटी में मुर्दमशुमारी का अमल गुज़श्ते दिनों से जारी है। इस अमल के बारे में शोबे खबर के सरबराह इशफाक शाह से एक मुख्तसर बातचीत में अमित शर्मा ने कहा, जो डिजिटल सेल्फ इन्यूमरेशन प्रोसेस स्नो बाउंड एरियाज के लिए शुरू हो गया है उसके बारे में हमें बताइए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो पार्शली स्नो बाउंड है ऑलरेडी नोटिफाइड है, उनमें सेल्फ इन्यूमरेशन स्वगणना जो है, जो हम आजकल डिजिटल फॉर्मेट में सारी चीजें कर रहे हैं, तो वो खुल गया है। अब लोगों को एक सुविधा मिलेगी कि खुद से अपना सेल्फ इन्यूमरेशन कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो तामीर रखती है तरक्की याफ्ता स्कीमों की, जैसे हम विकसित भारत की बात करते हैं, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। डिजिटल लिटरेसी का मामला आता है तो उसके लिए आपने मिशनरी रखी होगी जो खुद नहीं भर पाए उनके लिए उनकी मदद के लिए। नहीं, देखिए पहली बात तो सेल्फ इन्यूमरेशन जो है वो एक वॉलेंट्री, एक अपना सेल्फ इनिशिएटिव है, मतलब इट इज नॉट मैंडेटरी। बहुत से लोग जो पिछली बार भी मिस कर गए थे जब हमारा हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन हुआ था मई जून में, मतलब मई में हमारा सेल्फ इन्यूमरेशन हुआ था, सेम ऐसे ही था 17 मई से 31 मई सेल्फ इन्यूमरेशन पॉपुलेशन इन्यूमरेशन पहाड़ी इलाकों की ये खुली है 17 अगस्त से 31 अगस्त के बीच। उसके बाद तो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक हमारे एक्सपर्ट्स
एन्यूमरेटर सुपरवाइजर जिनको हमने डिजिटली पूरा ट्रेन किया है, वो जाकर लोगों से लेंगे। वैसे भी आपको अपनी सेल्फ आईडी प्रिजर्व करके रखनी है, यानी कि जो आप लोगों ने आईडी जनरेट किया है उधर, आप हमारे जब आएंगे एन्यूमरेटर सुपरवाइजर डोर टू डोर सर्वे करने के लिए सितंबर के महीने में, तो तब आपने उनसे शेयर करनी है और वो क्रॉस चेक करेंगे कि आपने ठीक भरा है, कोई कमी पेशी रह गई है तो आपकी मदद करेंगे। और मेरी सबसे गुजारिश रहेगी कि सही सटीक डेटा भरिए। अगर आपके घर में 10 नफर हैं तो पूरे 10 भरिए, ना 6 भरिए ना भरिए। अगर 3 है तो 3 ही भरिए। या आप लगा लीजिए अस्पताल बनते हैं, स्कूल कॉलेज बनते हैं, या जो जो महकमा जात काम करते हैं, तो प्लेन है टोटल वो जम्मू, श्रीनगर, साम, रजौरी, इनको छोड़ के बाकी सब जिलों में पार्शली स्नो बाउंड है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में शमसी और पन बिजली के वसाइल की काफी सलाहियत मौजूद है, जिसे मुनासिब प्रोजेक्टों को इस्तेमाल में लाते हुए बरोए कार लाया जा सकता है। श्रीनगर में महकमा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से काबिल तजदीद तवानाई की प्रोग्रामों और जम्मू कश्मीर में सब्ज तवानाई की पॉलिसियों पर अमल दरामद की पेशरफ्त का जायजा लेते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि इन वसाइल को बरोए कार लाने से न सिर्फ तवानाई की यकीनी फराहमी मुमकिन बन सकेगी, बल्कि एक साफ शिफाफ और हरे भरे जम्मू कश्मीर की तामीर के अलावा मकामी सतह पर रोजगार के मौके पैदा होंगे। मीटिंग में जानकारी दी गई कि नई और काबिल तजदीद तवानाई की मरकजी विजारत की तरफ से मंजूर करदा 15 तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्टों में से 8 DPR जम्मू कश्मीर के लिए मंजूर किए गए हैं। पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी 17 अगस्त के रोज हर घर तिरंगा मुहिम के तहत सरगर्मियां इख्तिताम पजीर हो गयीं। ये मुहिम 9 अगस्त को शुरू हुई थी, जिसके चलते मुल्क की जिदोजहद आजादी के सपूतों को खराज अकीदत अदा किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा में मुनक्किदा इख्तितामी तिरंगा रैली में शिरकत की। इस रैली में हजारों छोटे बड़े लोगों ने अपने हाथों में कौमी परचम लिए हुए सरगर्म शिरकत की। इस मौके पर LG ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो अपने आप को जम्मू कश्मीर और कौमी तामीर के लिए वक्फ करें। इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय मईशत की तरक्की अब आलमी सतह पर तस्लीम की जा रही है और मुल्क अब 6 से 8% की शरह से तरक्की कर रहा है। नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश जापान सरमायाकारी समिट 2026 से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि सरमायाकारी मुल्क के तरक्याती सफर में कलीदी अहमियत की हामिल है। The investment story is very important part of our entire growth journey. From a very minuscule investment that we used to make in our country, the public investment. Today we have reached a level where we are making a sustained public investment of $130 billion every year. That much economic activity has helped our country grow in a very sustained manner, generate lots of new employment opportunities, and make sure that the benefits of growth reach every segment of the society. डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने श्रीनगर में मुनक्किद होने वाले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ जम्मू कश्मीर की कामयाब इनेकाद के लिए तैयारियां मुकम्मल करने और मुतल्लिका महकमों के माबैन करीबी तालमेल की जरूरत पर जोर दिया है। कमिश्नर मौसूफ ने एक मीटिंग के दौरान इस फिल्म फेस्टिवल के लिए अब तक की तैयारियों का जायजा लिया। नाज़िम इत्तलात श्रिया सिंघल ने उन्हें इस बारे में तफसीली जानकारी दी। वाज़ेह रहे कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ जम्मू कश्मीर श्रीनगर में 7 से 10 सितंबर तक मुनक्किद हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमाम सियासी जमातों पर जोर दिया है कि वो पार्लियामेंट और रियासती असम्बलियों में खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन के निफाज को सियासी मामला बनाए बगैर इसकी हिमायत करें। वजीर आजम ने कहा है कि खवातीन को बाइख्तियार बनाने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि मुल्क की खवातीन को कानून साज असम्बलियों और लोकसभा में 33% नुमाइंदगी हासिल हो, सबको आगे बढ़कर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि खवातीन को भारत की पॉलिसियों की तश्कील में अपना किरदार अदा करने का मौका दिया जाना चाहिए। भारतीय रेलवे ने एक अहम पेशरफ्त के तहत जम्मू और श्रीनगर के दरमियान उधमपुर से होते हुए तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करने का फैसला किया है। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस हवाले से रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव का एक खत शेयर किया है, जिसमें इस मंसूबे की मंजूरी की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही न्यूज रील का हमारा आज का शुमारा खत्म हुआ। निगरानी आला इशफाक शाह, तरतीब व तहजीब कोशिकी कश्यप,
راوی و میزباں شبیر الزماں، ریکارڈنگ ایڈیٹنگ آصف بشیر، پیشکش ریجنل نیوز یونٹ آکاشوانی سری نگر۔